ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سال بعد وائٹ ہاؤس میں واپسی، دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب 538 میں سے 277 الیکٹورل ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو شکست، 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر پائیں۔ ٹرمپ کا جنگ ختم، بارڈر سیل کرنے کا اعلان۔ فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے کہا، ہم نے آج تاریخ رقم کی، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنا دوں گا۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے بلکہ جنگوں کو ختم کریں گے۔ سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا، غیر قانونی تارکین وطن کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے 50 میں سے 27 ریاستوں میں میدان مار لیا، 19 ریاستوں میں کیملا ہیرس کامیاب، 7 سوئنگ ریاستوں میں 4 پر ٹرمپ کامیاب۔ شمالی کیرولینا، پینسلوینیا، جارجیا، وسکونسن میں فتح سمیٹی۔ فلوریڈا، الاباما، اوکلاہوما، میسوری اور ویسٹ ورجینیا میں جیت ٹرمپ کے نام رہی۔ انڈیانا، ساؤتھ کیرولینا اور کینٹکی میں بھی ٹرمپ فاتح۔ ٹیکساس، نارتھ ڈیکوٹا، ساؤتھ ڈیکوٹا، وومنگ میں ٹرمپ نے میدان مار لیا۔ کیملا کیلیفورنیا، نیو یارک، کولمبیا، میری لینڈ میں کامیاب رہیں اور نیو جرسی آئی لینڈ میں بھی کیملا ہیرس جیت گئیں۔ منیسوٹا، نیو جرسی میں ہیرس کو فیصلہ کن برتری حاصل۔ ریپبلکنز نے امریکی سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لی۔ ریپبلکنز 51، ڈیموکریٹکس 43 نشستوں پر کامیاب، 34 نشستوں پر انتخاب۔ ریپبلکنز فاتح رہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 196، ڈیموکریٹکس 176 نشستوں پر کامیاب۔ 435 رکنی ایوان نمائندگان میں اکثریت کے لیے 218 نشستیں درکار۔ 11 ریاستوں کے گورنرز کا بھی چناؤ، 8 میں ریپبلکنز اور 3 میں ڈیموکریٹکس کامیاب۔ ریپبلکنز کے گورنر 27، ڈیموکریٹکس کے 23 ہو گئے۔ امریکی انتخابات میں کئی پاکستانی نیاد امریکی بھی میدان میں۔ ٹیکساس سے ڈیموکریٹک کی ٹکٹ پر سلمان بھوجانی کامیاب، میشیگن سے عائشہ فاروقی، جبکہ نیو یارک سے ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان امیدوار۔ پینسلوینیا سے ڈیموکریٹ ٹکٹ پر مریم صبیبی میدان میں۔ کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پینسلوینیا میں مقابلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی، نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور بلاول بھٹو کی بھی مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈرنک مخالف فتح ملی، امید ہے نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ امریکی عوام نے ٹرمپ کو شاندار فتح دی۔ امریکی انتخابات کی کوریج میں ایکسپریس نیوز۔ ٹیکنالوجی کی نئی بلندیوں پر پہلی اے آئی رپورٹر جینیفر نے ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کی خبر دی۔ جینیفر کا کہنا تھا، شہری علاقوں میں ٹرمپ کی جیت ڈیموکریٹکس کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ٹرمپ نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس بار ان کی سیاسی بصیرت زیادہ واضح ہے۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال، پنجاب حکومت کے سخت اقدامات۔ 4 ڈویژنز میں 17 نومبر تک ہائر سیکنڈری سکولز بند کرنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال میں سکولز بند رہیں گے۔ فیصل آباد، چنیور، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، منڈی بہاؤالدین، ملتان، لودھنا، وہاڑی، خانیوال میں بھی سکولز بند رہیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، 17 نومبر تک سکولز بند رہیں گے، آن لائن کلاسز ہوں گی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% ملازمین کے ساتھ کام ہوگا۔ لاہور میں شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کلکت بلتستان کا دورہ، خیسر میں 2022 کے سیلاب متاثرین کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کا افتتاح۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں گھروں کی ملکیتی کاغذات تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، معیاری گھروں کی تعمیر لائق تحسین ہے، گھروں کی تعمیر کے لیے سب ادارے داد کے مستحق ہیں۔ ماڈل ولیج میں اسکول اور ڈسپنسری کی تعمیر فوری شروع کی جائے۔ قندیل کے لیے 50 لاکھ انڈومنٹ فنڈ 67 لاکھ پر پہنچ گیا۔
बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनीज ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त रवां माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। पहली तिमाही के लिए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ रुपए वसूलियों की दरख्वास्त। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक बिजली तरसील और तकसीम के नुकसानात की मद में 2.25 अरब रुपए की बचत हुई। पाकिस्तान की माइशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई। रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई में भी नुमाया कमी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, हम पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। तमाम मस्बत माशी आशारिये हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ के समरात हैं। हुकूमत सिंध माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की मंजूरी। ई स्टैम्प की सर्विस के लिए FPR और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ माहिदे में तोसी की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर IMFN से मुलाकात। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। सैलाब मुतासरीन के लिए पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों पर गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुमकिना तनाव के बायस सिक्योरिटी सख्त। खबर एजेंसी के मुताबिक वोटिंग के दौरान कई रियासतों में बम थ्रेट मौसूल। अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBR का कहना है कि जाली खबरें रूसी डोमेन वाली ईमेल ने फैलाई। रूस ने तरदीद कर दी। जॉर्जिया में बम की मौजूदगी की गैर मुस्तनद इत्तला पर दौड़े। पोलिंग स्टेशन खाली करा लिया। फेल्टन काउंटी में 5 मकामात पर बम की अफवाह पर पोलिंग कुछ देर रोकना पड़ी। वाशिंगटन DC में फ्लेयर गन उठाए शख्स गिरफ्तार। अमरीकी रियासत में सूरी में शदीद सैलाब से वोटिंग मुतासर। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने पाम बीच फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। अहलिया मेलानिया ट्रंप भी वोट कास्ट करने पहुंची। डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस बजरिया डाक अपना वोट पहले ही डाल चुकी थी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने इलेक्शन को मुनसिफाना करार दे दिया। फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में भी वोटर्स की तबाह से वर्जीनिया में लॉलीपॉप और चॉकलेट बिस्किट से वोटर्स को राम करने की कोशिशें। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के रसाकार भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे। रसाकार मेज़ों में मुख्तलिफ चीजें सजाए बैठे रहे। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का राज व्हाइट हाउस पर। सदारती मुहिम के आगाज से इलेक्शन के हतमी मराहिल तक हम आप तक पहुंचाते रहे लम्हा ब लम्हा लाइव अपडेट, माहिरीन के तज्जिए, हार जीत की कशमकश से जुड़ी हर खबर। इलेक्शन न्यूज कवरेज में हमेशा की तरह सबसे आगे एक्सप्रेस न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में नाजरीन को बाखबर रखा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकारों के तज्जिए, अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों के तासुरात, कौन आगे कौन पीछे, स्विंग स्टेट्स का क्या किरदार। जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनीज ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त रवां माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। पहली तिमाही के लिए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ वसूलियों की दरख्वास्त। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक बिजली तरसील और तकसीम के नुकसानात की मद में 2.25 अरब रुपए की बचत हुई।
पाकिस्तान की मशरत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई, रुपया मुस्तहकम हुआ, महंगाई में नुमाया कमी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में फ्यूचर समिट से खिताब, कहा हम पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। तमाम मुस्बत अशारिये, मुआशी अशारिये हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के समरात हैं। PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगी। पार्टी ज़रा के मुताबिक मरियम नवाज लाहौर से बारास्ता दुबई लंदन जाएंगी। वज़ीर आला ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के हमरा यूरोप के दौरे का भी इम्कान। दोनों एक हफ्ते बाद इकट्ठे वतन वापस आएंगे। पंजाब में मवेशी पाल फार्मर्स के लिए बिला सूद कर्ज प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज। CM लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू। कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। रजिस्टर्ड डीलर से वंडा मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीदा जा सकेगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद हो सकेंगे। सिंध हुकूमत माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की मंजूरी। ई स्टैम्प की सर्विस के लिए FPR और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहिदे में तोसी की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर ईमा फैन से मुलाकात। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। सैलाब मुतासरीन के लिए पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों पर भी गुफ्तगू। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 143 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 117 मरीजों की तस्दीक। रावलपिंडी में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 291 हो गई। गजा और लिबनान में सेहूनी जारहियत जारी। गजा में इसराइल की बमबारी, मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लिबनान के कस्बे बर्चा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 20 अफराद शहीद। इसराइल ने अब तक जनूबी लिबनान के 37 कस्बों में 40,000 मकानात तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफा बरतरफ। वज़ीर ख़ारजा इसराइल का कॉटन्स वज़ीर दिफा नामजद। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के वक्त वज़ीर दिफा पर एतमाद नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा को बरतरफ करने पर नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन की इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर सिक्योरिटी बैरियर हटाने की कोशिश। अमरीकी फौज हाइपरसोनिक एटमी मिसाइल तजर्बे के लिए तैयार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मिसाइल तजर्बा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को बरसों पहले ही आज के दिन के लिए शेड्यूल किया गया था। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में 30 मिनट के अंदर हदफ को निशाना बना सकता है।
दूसरे का ख्याल रखने में पाकिस्तानी नंबर 1। आलमी सर्वे में हैरान कुन इंकशाफ। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पुरस्म होने के बावजूद इंतहाई रिवायत पसंद है। फ्रेंच फर्म की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत कामयाबी का तयन ज़ाती मिल्कियत से करती है। ख्वातीन को सिर्फ अच्छी माँ और बीवी के किरदार में देखना चाहते हैं। बच्चे पैदा करने को मुआशरती फ़र्ज करार देते हैं। तकरीबन 100% ने मजहब और अकीदे को अहम करार दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 67% भारतीय अपने मुआशरे को टूट फूट का शिकार देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे की तैयारी। कौमी टीम की एथलेट ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट। प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग भी की। दूसरे वनडे में रेगुलर स्पिनर्स को खिलाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मार्स लेबेश्रेन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक तीसरे वनडे के लिए भारत के खिलाफ पोर्ट गावस्कर ट्रॉफी की तैयारियों को खत्म शक्ल देंगे। जोश इंग्लिश तीसरे वनडे में टीम की क़यादत करेंगे। दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल। अल नसर ने अल ऐन को 5-1 के बड़े फर्क से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुलहैम ने ब्रेंटफोर्ड को 2-1 से हरा दिया। ला लीगा में सेल्टा विगो ने गेटाफे को 1-0 से शिकस्त दे दी। यूएफए चैंपियंस लीग में लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने अपने मैच जीत लिए।